चलिए सभी को प्रणाम। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। एक्चुअली कल का रिकॉर्डिंग मैं इसलिए नहीं भेज पाया। कुछ मतलब शायद टेक्निकल फॉल्ट्स के कारण ना मैंने रिकॉर्डिंग शुरू तो की थी, वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया। तो कल का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही शायद बीच में एक रिकॉर्डिंग और अवेलेबल नहीं था। तो जो है वो हम आप लोगों को भेजेंगे। जो नहीं हुआ मतलब कल वाला कुछ फॉल्ट बता रहा था, डाउनलोड मतलब डाउनलोड मीन्स रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। तो कल की वीडियो जो है अवेलेबल नहीं रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। ओके। ओके। होप माय स्क्रीन इज विजिबल ना। ओके। यहाँ चलिए। तो वी डिस्कस्ड अबाउट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कारक, है ना। कारक मीन्स केसेस, केसेस ऑफ तिब्बतन ग्रामर, Tibetan language. So we discussed about first case, second case, and third case. है ना? In first case, we don't have a sign of cases, but how we recognize that this one is first case? So if we have single word, just like a noun words, है ना? In in this word, which all the names are known as noun, है ना? So all nouns are first case according to Tibetan grammar. So we discussed about this thing, and after that we move to second case, है ना। So second case, कर्म कारक. In second case we have object, है ना. So we in second case we have clear object where work is done, है ना. So second object में हमने वो बात की थी कि किसी ऑब्जेक्ट पर मतलब कर्म पर कोई कार्य हुआ है. ओके. So the rule, the sign of cases, है ना, सूरा रुदु नाला तू, we have for second case, है ना. So in any word, in any sentences, है ना, if we or not any sentence, just like in any simple sentence where we have object and where we saw the work done on that object, है ना, that would be go as second case. And after that we discussed about third case, है ना. So third case we have subject and verb done by subject on an object, है ना. अब इसमें क्या था थर्ड केस में, if we don't have object it's okay, है ना, but we have to recognize, we have to understand that this verb is done by any subject, है ना. तो ये हमारे दिमाग में हमको ये समझना है थर्ड केस में. ठीक है. थर्ड केस जस्ट लाइक टशी की ट्री, है ना. टशी किस ट्री, अगर मैं वो लिखता हूँ, जस्ट वेट, एक एग्जांपल थर्ड केस का मैं फिर से क्लियरिटी के लिए, इट्स ओनली फॉर क्लियरिटी, है ना. व्हाई इट्स नॉट वर्किंग. टशी किस ट्री, है ना. जस्ट लाइक लुक हियर, दिस वन इज वेरी सिंपल सेंटेंस ऑफ थर्ड केस, है ना. ओवर हियर वी डोंट हैव ऑब्जेक्ट. ओके. Oh, in this sentence we have subject tashi, है ना, and after that we have sign of कारक किस, and after that we have a verb dis d, है ना. तो टशी लिखता है या टशी लिखेगा या टशी लिख चुका है, बट उसने क्या लिखा है, किस वर्ड पे लिखा है ना. व्हाट डिड ही राइट, व्हाट विल बी, व्हाट ही विल राइट इन फ्यूचर, व्हाट ही इज राइटिंग, है ना. वो that one is not include in this sentence, and this sentence is very simple sentence. Over here we have subject, after that we have sign of case, after that we have verb, है ना. So this kind of work, है ना. In third case we don't need object. If we have object it's okay, है ना. We can arrange, we can translate as adding object in a sentence, है ना. But if we don't have object over there, then we can, uh, if we don't have object there, then
and also if we have simple sentence without object, then we have to recognize that this sentence is belongs to third case, है ना? So okay, and the sign of cases we discussed about third case are, है ना, giss, kiss, uh, giss, yes, है ना? तो ये 5 प्रकार के, we have 5 kinds of sign of cases for third case. Okay, now we will discuss name shipa, है ना? Name shipa means fourth case, है ना? Fourth case, I think. Okay, fourth case name shipa, है ना? तो over here shipa is uh numericals, just like numbers, है ना? We have 1 2 3 4 5 6 7 8. In Tibetan we have chik, ni, sum, shi, है ना? And when we used to make serial number, at that time we will not use just wait. At that time in serial number we will not use the cases as just like for number 1 we have a Tibetan word chik, है ना? But when we use numbers as serial number, है ना, that time we will use this word dangpo, है ना? Serial number 1 ni pa, serial number ni 2, है ना? So like this we have to add these things, sumpa, and over here we have shipa, na? So shipa is fourth. Just if we adding th, st, nd, है ना? That time we have to write for first case dangpo, है ना? And name cases, ठीक है? So this one is fourth case we are discussing today, na? We will discuss today. Okay, so uh, so in third case we discussed that uh, we have a subject who is doing a work, है ना? But in this sentence, in this case, है ना, just like in देवनागरी, है ना, we have कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना? संप्रदान के लिए means we are doing that work for some purpose, है ना? For some reason. So in this sentence we have that reason, है ना? It's just like if we are making a sentence. In this sentence, it's okay. We don't need subject. है ना? Subject means in sentence, practically we don't need sentence, but individually we can understand, we can recognize that there is a sentence subject in this sentence. And second thing, we need purpose, है ना? Just like what is the purpose of the work? What is the purpose of the work which is doing by a subject, है ना? So in this sentence we need that purpose, है ना? किस लिए? Just like the answer of किस लिए, why, है ना? तो जो answer, the question answer for why, है ना, we need that answer in this case. In this sentence we will make these kinds of sentences, just like शिक्षा के लिए विद्यालय जाओ, है ना? तो यहाँ पे क्या था, किसके लिए विद्यालय जा रहे हैं? शिक्षा के लिए। अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि लब्डा डो मतलब विद्यालय जाएं, है ना? लोब्सांग लब्डा डो, लोब्सांग विद्यालय जाओ, है ना? बट लोब्सांग विद्यालय क्यों जा रहा है? वाई ही इज गोइंग टू स्कूल, है ना? We don't have purpose, we don't have reason in that sentence, but in this sentence, in this case, we have that purpose or reason, है ना? So when we have some reason showed in a sentence, that would be a fourth case, है ना? So just like I gave some examples over here, but first of all, I will explain the meanings of this just like explanation of fourth case, na? So over here, Jawe Yul means object.
ऑब्जेक्ट, है ना। ला इज सेकंड केस, ठीक है। जावा, जावा इज वर्क, है ना। जेपा, जेपा मीन्स काम का होना, है ना। तो ओवर हियर वर्क डन। एंड गोयपा, है ना। द मेन थिंग इज दिस वन इन फोर्थ केस, गोयपा द गोस्पा, ठीक है, गोस्पा, गोस्पा। सो गोस्पा, द मीनिंग ऑफ गोस्पा इज रीजन और पर्पस, ठीक है। चोर, है ना, main. Now see, in Tibetan, when they explain, they giving the explanation of fourth case, and he added the person who is giving this explanation. He add this thing, this word, chor. Chor is mainly, है ना. So in this case, है ना, we have object, we have work, है ना, done on that object, है ना, and the reason mainly showed the reason why that work is done on that object, है ना. That one is shown in this case. Okay. Tempe, tempe means over here tonpa, है ना, show, and he, है ना, he is sixth case, ठीक है ना. Sixth case. And ladun, ladun we discuss about the sign of karaka, the name of sign of karaka for second case is ladun, है ना. Why that one is known as ladun? Because la is the main uh, alphabet which we can use instead of every other six alphabet. Just we have sura, ru, du, na, la, tu. We have seven kinds of alphabets, है ना, in second case. But instead of those seven things, we can add la, है ना, in every place. Just so the name of those seven alphabets together, we pronounce that one is ladun, है ना. So just like in fourth case, we need those seven case sign of cases. Okay. So just like first one is object, we need object and work done on that object, है ना. And the reason, mainly we need reason, है ना. And reason, who's this? Excuse me. এখান থেকে স্টার্ট করবে, সেখানে ফিরতে হবে। এক, এক। Okay. Okay. So ladun, है ना, just like we discussed, we need a object and work done on that object, है ना. With those things, we need why, है ना, the reason why that work is done on that object, and reason will be shown with this one, with the ladun. Ladun means sura, rutu, nalatu. These seven sign of karaka, sign of cases we will use with in this case. Okay, है ना. Denba, denba means युक्त, जो हम लोग शब्द हिंदी में यूज करते हैं ना, लादुन के जो कारक चिन्ह है ओवर हियर, लादुन इज जो सेवन केसेस, सेवन साइन ऑफ केसेस ना, सेवन साइन ऑफ, सेवन साइन ऑफ केसेस नहीं लिखूंगा मैं, सेकंड साइन ऑफ केस, ठीक है. नेम ऑफ द साइन ऑफ केस, या फिर सेकंड केस, ठीक है ना. नॉट ओनली सेकंड केस, है ना. दो सेवन थिंग्स, सूरा, रुदु, नाला, तू, है ना, दो सेवन थिंग्स विल बी एड इन सेवंथ के सेकंड केस, फोर्थ केस, ओके, एंड सिक्स्थ वन, ठीक है, सिक्स्थ केस. हम्म. ओके, है ना.
second case, fourth case, and sixth case, we have those sign of karakas, है ना? Those 7 sign of karakas we have to have in these 7 cases, 3 cases. Okay, second case, fourth case, and sixth case. And tre means sign of cases. Okay, just like sign of cases for second, fourth, and sixth, we have Sura, Rutu, Nala, Tu, and third, not sixth, sorry. Seventh. Nishidumba, 7, yes. 7th, है ना? And just like for third and sixth, we have Gi, Ki, Ki, Hingabo, है ना? So these kinds of sign of cases, है ना? The sign of name of those sign of cases we will use as thid, है ना? देखिए यहाँ पे जो मीना मैम, सर yes, just like over here, na, we have a word fa. With fa we have ra, है ना? And pronunciation of this letter will change in tha, है ना? जी, ठ। तो जैसे पा के साथ अगर रा आएगा तो वो टा हो जाता है, फा के साथ रा जी आएगा तो ठा हो जाता है ना, और जी ब के साथ रा आएगा तो डा हो जाता है। ये मैं जी आपको एक भेजता हूँ, उससे क्लियर हो जी जाएगा, ठीक है? थैंक यू सर। है ना? देनबा मीन्स इंक्लूड, ठीक है? इंक्लूड मीन्स युक्त। युक्त के लिए इफ यू गाइस हैव एनी अदर वर्ड, प्लीज रेकमेंड मी, है ना? शिग, शिग जो है वन के लिए ही यूज होता है। वो जस्ट लाइक इसका पैटर्न अलग जाता है। देम्बा शिगला, देम्बा चिगला, यहाँ पे आप चिग भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस वर्ड, है ना? शिग, वी कैन ऐड हेयर चिग ऑल्सो, है ना? तो ऐसा एक सेंटेंस, जो ऐसा एक वाक्य है, एक जो हम लोग शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पे ओवर हेयर, द one sentence, है ना? The one sentence where we have object, with that object we have a verb, है ना, done on that object, and we have reason. Mainly we have reason why that work is done on that object. This kind of, and also, है ना, include with uh, second with ladun, sign of case ladun, है ना? Include with that sign of case is, है ना? This kind of sentence, if we have this kind of one sentence, and that one is name shipa, fourth case goche, है ना? Reasonable, where we need the goche means, goche is the name of fourth case. Okay, name of fourth case. Okay, so in this sentence we ser means said, कहा जाता है, कहते हैं। सिर जो है, सिर इज द नॉर्मल लैंग्वेज, है ना? जस्ट लाइक shed, सिर, वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ दिस वर्ड shed ऑल्सो, है ना? दिस वन ऑल्सो वी कैन ऐड हेयर। तो ये सब जो है कहा जाता है, कहते हैं, उसको दर्शाता है, ठीक है? कहने के अर्थ में यूज होता है। ओके, तो यहां तक जो है फोर्थ केस का डेफिनेशन था। टिल हियर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ फोर्थ केस, है ना? सो अगेन लास्ट टाइम आई एम सेइंग अगेन, है ना? जस्ट लाइक a sentence where we have a object and we have verb, है ना, which is done on that object, and the reason why that work is done on that object. Also, that reason will include with the 7 kind of sign of cases which is named as ladun, है ना? Those are Sura, Rutu, Nala, Tu. This kind of the sentence is known as fourth case, Gosche, है ना? Gosche. Over here, Gos is मतलब क्या कहते हैं अब हम लोग?
चाहने के अर्थ में। ये जो शब्द है गुस, है ना, गुस नीड के अर्थ में भी दिखाता है, और गुस्पा रीजन को भी दिखाता है। जस्ट लाइक इन इंस्टेड ऑफ दीज टू, है ना, हम लोगों को दोनों सेम सेम ही रहेगा। जैसे इफ आई एम सेइंग दैट आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर लर्निंग, है ना, तो फॉर लर्निंग, हाँ, द इन इंग्लिश वी विल यूज फॉर fourth case, है ना, in the sentence of fourth case we will use the sign of case for, for, है ना। तो देखिए just like in second case in English mostly we used to, and in fourth case we will use for, है ना। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल फॉर लर्निंग, है ना, सो देयर इज अ रीजन ऑल्सो एंड देयर इज अ नीड ऑल्सो, है ना। I need to learn. That's why I'm going to school. है ना? So that this kind of sentence is related to fourth case. So I wrote down here some examples. Hmm, okay. Okay. And also after that we have this one. है ना? Goschid. Goschid is the name of the case. है ना? Name of the fourth case. Okay. Name of the fourth case. Salje. है ना? Salje is the clarification. Uh, क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन मीन्स स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। सिक्ठे, है ना, सिक्ठे मीन्स साइंस। यहाँ पे हम लोग साइन ऑफ केसेस भी कह सकते हैं, साइन, है ना, साइन। घ मीन्स फ्यू, ठीक है। और ये नी जो है, दिस वन इज ऑल्सो sign of cases, not sign of cases, this one is also a sign, है ना, which we used for make sentences, add sentences, just like this one is संयोजक अव्यय, है ना। जैसे in Hindi there is a sentence just like क्या कहते थे, हाँ, चार प्रकार के वेद तो, है ना। तो उसमें हम लोग अथर्ववेद क्या था, सॉरी, फोर काइंड्स ऑफ वेदास, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और एक वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद, है ना। तो उसमें देखिए चार प्रकार के वेद होते हैं, कौमा, फिर उसमें हम लोग ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद करके ऐसे करके ऐड करते हैं, है ना। तो उसमें क्या था, पहले उन्होंने नंबर बताया, है ना, कि कितने प्रकार के वेद हैं, और उन वेदों को एक्सपेंड किया, वहां पे आगे क्लियरली दिखाया। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है, मेनली दिस सेंटेंस उस सेंटेंस की तरह, तो उस समय हम लोग नी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एट दैट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, फॉर दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी हैव दीज थिंग्स, है ना। नीडा, ये हम लोग अभी आगे अगर समय रहेगा कारक के बाद, अगर हमारे पास थोड़ा और समय रहता है कारक की समाप्ति के पश्चात, सो देयर आर सम स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शंस, है ना, रिलेटेड टू दीज थिंग्स वी विल डिस्कस, है ना। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ फोर्थ केस मीन्स गोश्चे, है ना। सो फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ फोर्थ केस, है ना, देयर आर फ्यू साइंस, विच आर दोज आर दीज ones, सॉरी, छेद, छिर, धुन, लेद, एंड बस लेद। चे मीन्स ईटीसी के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इन सब का मीनिंग, छेद, छिर, धुन, लेद, है ना, इन सब का मीनिंग होगा फॉर,
इन हिंदी के लिए। ठीक है, तो ये जो चेहिन है आदि है ना, तो for means in the sentence of fourth cases, in some places we don't have these signs है ना, in some places we have simple sentences है ना, just like lobjong do lobder do। ठीक है, lobjong do lobder do, that one is a simple sentence है ना। The meaning of that sentence is labda means school है ना, lobjong means learning है ना। So for गोइंग टू स्कूल फॉर लर्निंग, या फिर विल गो टू स्कूल फॉर लर्निंग, वेंट टू स्कूल फॉर लर्निंग है ना। तो ऐसे सेंटेंस जो बनते हैं उसमें जस्ट लाइक उसका सिंपल सेंटेंस जो है लोब्जोंग दू लोब्डर डो। ठीक है, बट इनको ऐड करके भी हम बना सकते हैं। इनको ऐड करेंगे बाय एडिंग दीज फोर वर्ड्स है ना, दैट सेंटेंस वुड बी मोर क्लियर। जस्ट लाइक लोब्जोंग छे दू है ना, लोब्जोंग छे दू लब्डर डो। तो वहां पे बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि शिक्षा के लिए विद्यालय चलो है ना, या विद्यालय जाओ है ना। तो शिक्षा के लिए विद्यालय जाओ मीन्स उसमें के लिए जो शब्द है लोब्जोंग दू, दू जो द एट दैट टाइम फॉर लर्निंग गो टू स्कूल है ना। इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस in Tibetan we can write this translation for this sentence na, just like for learning go to school, for translation this subject we have two methods, just like first one is simple है ना, lobjong do labda do, and second one is we can add these things है ना, just like lobjong che do labda do, lobjong chir do labda do, lobjong dondu labda do, lobjong ledu labda do। हम ये चारों ऐड कर सकते हैं with adding these kinds of four words है ना, that sentence would be more clear that this one is related to fourth case है ना। So we will see here some examples है ना, which makes us more clear, okay। Okay, so now हाँ, and the rule है ना, rule of the sign of cases। Okay, again after this I will write down here hmm, sign of cases, sign of case for fourth case है ना। What are those? Those are su, ra, ru, dhu, na, la, tu है ना। Just like in second case, we have seven sign of cases, है ना? In fourth, we have same cases, and rule is a rule, है ना? Which are rules we followed in second case, है ना? Same goes for uh, fourth case. Just like if we have postscript sa, है ना? We have to add su. If we have sasu gaba, doctor, ga and ba, है ना? And okay, sa and ga and ba. If we have ga and ba, then do है ना, and doctor do, okay, and next one is ha, हाँ, ha, me है ना। हा में means okay, WITH without post script है ना। So for that we have ra and ru है ना, sura ru du
Nalathu. And now just wait. I think over here we will have that one. Okay. Yes, Fernando. Just wait, now. Okay, in this page we don't have those rules. Okay. चलिए, but just remember that, है ना? Okay, this one, no? नहीं. Okay. Just remember the rules for fourth case and of sign of cases is very similar to second one. Some of which I remember right now. I wrote down here, but मेरे को अभी clearly याद नहीं आ रहा, तो वो मैं आप लोगों को बाद में ऐड करके सेंड करता हूँ. Okay. So over here we will discuss about the examples, है ना? So Perna is translation of example, है ना? उदाहरण. ठीक है, तो कोई पढ़ेगा ये सेंटेंस? Anyone? So first one, Yes, first one. Tashi both Yik Yang to Chin. छिन, है ना? अब देखिए यहाँ पे दिस वन इज साइन ऑफ केस, है ना? ठीक है. दिस वन इज द साइन ऑफ केस विच इज लादन, है ना? वन काइंड ऑफ लादन. सूरा रू दू नाला तू. सो ओवर हियर वी हैव दू, है ना? तो टशी 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 इज द, दिस वन इज सब्जेक्ट, है ना? नेम. What is the meaning of this one? Now we have so many times in our sentences which we discussed before. What is the meaning of both? तिब्बत, है ना? और हिग स्क्रिप्ट. Yes, Tibetan alphabets. जे तिब्बतन स्क्रिप्ट कह सकते हैं, अल्फाबेट कह सकते हैं. ठीक है ना? जंग मीन्स, ये जो जंग शब्द है, लर्न, है ना? डू मीन्स फॉर फोर्थ केस. छिन मीन्स वेंट, है ना? सो प्लीज ट्राई टू ट्रांसलेट दिस वन. Tashi Wrote, sorry. Tashi wrote or Tashi is writing. What is the No, proper? I mean, this one is learn. Jang means learn, okay. not wrote. We don't have right word over here, है ना? Tashi went for learn Tibetan script, Okay. है ना? अब यहाँ पे देखिए हर वर्ड ऐड हुआ है. टशी ऐड हुआ है, वेंट ऐड हुआ है ना? ओवर हियर फोर वी हैव आल्सो, एंड लर्न आल्सो, एंड तिब्बतन स्क्रिप्ट आल्सो वी हैव. तो ये भी है. जब आप लोगों को मीनिंग पता चल जाता है ना? व्हेन यू रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, है ना, यू कैन ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस. यू आर एबल टू मेक सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू दोज वर्ड्स, है ना? तो उसके आधार पे आप इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हो, है ना? फॉर ट्रांसलेशन दिस वन इज द बेसिक थिंग, आई थिंक सो.
है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और करता हूँ, है ना। इन दिस सेंटेंस जस्ट लाइक टशी बुइक जंग दू छिन, है ना। तो जंग, आफ्टर जंग वी कैन ऐड दीज 4 थिंग्स ऑल्सो। कहाँ गया, छे, छिर, दोन, ले, है ना। तो यहाँ पे हम लोग टशी बुइक जंग छिर दू छिन, जंग ले दू छिन, जंग दोन दू छिन, जंग और क्या था एक और, छेदू, हाँ जंग छेदू छिन। ऐसे भी सेंटेंस बन सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज। 롭, यस यस प्लीज। 롭종, 롭종 찌르두, 롭, 드바르, लोब्डर, 도. do, very good. Just wait, my battery is low, I will charge. ओके, है ना। सो लोब्जोंग छिरदू लब्डर डो, है ना। सो जस्ट वेट एक मिनट, मैं इसका क्लियर सा मीनिंग आप लोगों को बताता हूँ। ओके, सो लोब्जोंग, है ना। लोब्जोंग मीन्स, द मीनिंग ऑफ लोब्जोंग इज, मैं इसको पहले कॉपी करके एक और ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद उसको ब्रोक डाउन करेंगे। ओके, द मीनिंग ऑफ लोब्जोंग इज स्टडी, स्टडी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो चारों में से एक ऐड हुआ है, दोज वर्ड्स विच we discussed over here ना, few signs of fourth case. So over here we have chir, है ना। So in this sentence they add chir, है ना। लोब्जों छिर दू means these both are signs of fourth case, है ना, which is for. Lobder, in this sentence we have this one. Which case is this? 세컨, Sorry? 세컨 케이스. Second case, yes, very good. है ना, and the meaning of labda, है ना, labda is school. School. And do is go. So please try to translate this sentence. Go to school in order to study. Yes, go to school for study. है ना? So the over here, chir do, together they will also indicate for. है ना? Sign of case. The meaning of case is for. है ना? तो go to school for study. This one is a simple sentence, simple translation for fourth case, है ना. In this sentence we have a work go, है ना. This one is verb doing by a student, है ना, but we don't have subject shown in subject added in this sentence, है ना. But we know there is a student who is going to school or who is advised by a teacher, by a elder to go to school, है ना. And the reason also we have study, है ना. So what is the reason for going to school? Reason is study. So in fourth case we need reason properly, है ना. Mainly we need reason. After that other things are just like sometimes we have subject, in this sentence we have subject over here, but in this sentence, sorry, not in this sentence. In this sentence we have subject over here, but in this sentence we don't have subject, है ना. We have subject individually, but we need
द पर्पस और रीजन, है ना. सो वी हैव इन दिस सेंटेंस दैट पर्पस. ओके. Sir, I have a doubt. यस यस Do we need to add a second case after both week in that first sentence? यस. अब ये देखिए ना, आप जब देवनागरी के सेंटेंसेस बनाएंगे, है ना, अपने शब्दों में बनाओगे, जब किसी सेंटेंस को बनाओगे, तो जैसे शिक्षा अध्ययन के लिए आश्रम को जाओ, है ना. तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा अध्ययन के लिए वी हैव के लिए केस, है ना, फोर्थ केस. और आश्रम को जो है सेकंड केस है. Second case. Yes. जी. तो ऐसे सेंटेंस में जब हमको लगता है कि यहाँ पे सेकंड केस होना चाहिए, तो वो सेकंड केस ऐड करना ही करना है. ठीक है. Uh, so in the first sentence, the यस यस. second case can be added. I mean, after both week. यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे टशी बुइक जंग छिरदू छिन है ना. अगर यहाँ पे टशी बुइक जंग छिरदू लब्डा अगर स्कूल ऐड किया गया होता, है ना, दैट टाइम वी हैव टू Yes. ऐड सेकंड केस. वी कैन ऐड सेकंड केस. ठीक है. So and for I mean both week la or both week two or हाँ, something यहाँ like पे that. भी I कर mean, सकते हैं. हाँ. yes, yes, ताशी बुइक ला जंग वेचिदु तिब्बती स्क्रिप्ट को सीखने के लिए. हाँ, तो उसमें yes, just like when we making sentences in हिंदी ना, तो अगर yes, आपको लगता है कि यहाँ पे को जोड़ना है, तो वहां पे आप सेकंड केस जोड़ सकते हो. कहीं पे भी, जहां पे भी आपको लगता है कि को की जगह को ऐड हो रहा है, वहां पे आप ऐड कर yes, सकते हो. एट दैट टाइम यू कैन ऐड. बट जो इसका yes, मैंने ट्रांसलेशन लिया था, मतलब जैसे टशी वेंट टू स्कूल फॉर लर्न तिब्बतन स्क्रिप्ट, मतलब टशी तिब्बतन स्क्रिप्ट सीखने के लिए या तिब्बती भाषा, तिब्बती वर्ण सीखने के लिए. वर्ण को नहीं लिखा लगाया मैंने यहाँ पे, आप को लगा सकते हो, है ना. yes. जी जी जी. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. ओके. प्लीज ट्राई टू रीड दिस वन. हेलो. Sir, जी जी. Maverick यस यस. goes to rest. Hug. हाँ, थक, है ना. तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक नया शब्द है, गोसु रेस थक, है ना. तो यहाँ पे द मीनिंग ऑफ गोस हम लोगों ने कल डिस्कस किया था. डिड एनीबॉडी रिमेम्बर द मीनिंग ऑफ गोस? Cloth. We have a word yesterday, just like I showed you in Tibetan for respected word, and in Tibetan there are two kinds of words, है ना, for respect and normal word, है ना. तो at that time एक मिनट से. Chose गोस, है ना. दिस वन इज रिस्पेक्टेड वर्ड फॉर क्लोथ, जस्ट लाइक. अब देखिए, क्लोथ वी हैव टू काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. विच वन इज द वन क्लॉथ इज, मतलब जो प्रॉपर रेडी, विच इज रेडी टू यूज, रेडी टू वेयर. एंड वन क्लॉथ इज which is ready to make clothes to wear, but that one is not in complete shape, in complete form, है ना. जो फैक्ट्री में सबसे पहले कपड़ा तैयार होता है ना, उसके लिए हम ये यूज करते हैं रे, है ना. ये भी इसका मीनिंग, द मीनिंग ऑफ रे इज ऑल्सो क्लॉथ, है ना. अब इसमें इफ यू हैव एनी डिफरेंसेस, मतलब वन थिंग, द गोस इज विच इज रेडी टू वेयर, जो सिला हुआ है, सब बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, उसको हम लोग गोस कहते हैं. एंड रेस, रेस मतलब जो कपड़ा है जिसे अभी हमने
तैयार नहीं किया है उसको अभी हम लोग जैसे जो टेलर के वहां पे ले जाएंगे, वी विल टेक दैट क्लॉथ टू टेलर एंड ही विल मेजर एंड टेक मेजरमेंट्स एंड आफ्टर दैट ही विल मेक अ क्लॉथ टू वियर, है ना। सो गोश्त जो है क्लॉथ के लिए होता है। इसके लिए रेस के लिए इंग्लिश में अगर कोई और वर्ड है तो प्लीज गिव मी जस्ट लाइक टेल मी। Unstitched. यस, अनस्टिच क्लॉथ बोल सकते हैं ना हम लोग। सॉरी, Sir, could it be fabric? फैब्रिक भी हो सकता है। मतलब फैब्रिक का वो क्या रहता है मीनिंग उसमें? मतलब जो रेडी नहीं है, जो कपड़ा तैयार नहीं है उसको फैब्रिक कहते हैं ना। और फैब्रिक इज वन काइंड ऑफ क्लॉथ्स, Yeah. है ना। फैब्रिक इज मेरे ख्याल से फैब्रिक इज वन काइंड ऑफ क्लॉथ बिकॉज वी हैव सम वुलन क्लॉथ्स, नायलॉन एंड खादी, है ना। एंड फैब्रिक वन काइंड ऑफ दोज क्लॉथ्स मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है बट आई डोंट नो। यस, अनस्टिच्ड मेरे को लग रहा है ज्यादा फेमिलियर रहेगा यहाँ पे। अनस्टिच्ड क्लॉथ मीन्स क्लॉथ विच इज नॉट रेडी, So है can you ना। just make it as a cotton? I mean, that could be also a meaning. नो, कॉटन जस्ट लाइक कॉटन इज द फर्स्ट प्रोसेस, है ना। कॉटन से पहले धागा बनेगा, धागे के बाद फिर उसको फैक्ट्री में ऐड करेंगे, उसके बाद वो एक शेप में आएगा। जस्ट लाइक आई हैव दिस क्लॉथ, है ना, ये एक कपड़ा है, ठीक है। अभी ये पूरा तैयार है तो हम लोग इसको मतलब गोश्त में ले सकते हैं, ठीक है। मैं मतलब इसको यूज करता हूँ ये But सब। I remember that I had come across this word. हम्म, I mean, when I was translating यस यस। text, and the meaning of this word was cotton. I mean, in that text, the meaning was ओके, cotton. आई विल चेक हियर, वेट। यस, एक्चुअली हॉपकिन, इन द डिक्शनरी ऑफ हॉपकिंस, है ना, द ट्रांसलेशन ऑफ रेस इज कॉटन। ओके, ड्रेस्ड ओनली इन कॉटन क्लॉथ, एस्थेटिक। नहीं नहीं, ये मतलब शायद उन्होंने किसी और अर्थ में लिया होगा। मे बी ही टुक दिस इन अदर वे बिकॉज जो रस रहता है तो वो रस जो है नॉर्मल जो हमारे पास मतलब फैक्ट्री में जो सबसे पहले एक कपड़ा तैयार होता है, जस्ट जस्ट लाइक हम लोग जो पैंट सिलाते हैं, पैंट या शर्ट जो भी सिलाते हैं, उसका जो एक नॉर्मल कपड़ा बिना सिलाया हुआ, बिना रेडी किया हुआ कपड़ा एक रहता है ना हमारे पास बंडल, किसी भी प्रकार का, मतलब सिर्फ पैंट शर्ट के कपड़ों का ही नहीं बता रहा हूँ, किसी भी कपड़े को जब तक रेडी नहीं किया गया उससे पहले का जो कपड़ा, नॉर्मल कपड़ा जो भी हो, तो उसको हम लोग क्लॉथ के मतलब रेस कहते हैं, ठीक है। और गोस मीन्स विच इज रेडी टू क्लॉथ। अभी यहाँ पे जैसे देखिए ये अभी जैसे उन्होंने, प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ हो गया ना, हाँ जी, प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ, नहीं प्रोसेस जैसे ऑफ, कपड़ा को रेडी करना है ना हमने, हाँ ये देखिए, थग मतलब मतलब थग इज, है ना, जो हम लोग मशीन में बुनते हैं। अब बुनने के लिए फिर मेरे को नया शब्द चाहिए इंग्लिश में। Wave. व्हाट इज द स्पेलिंग? Uh, WEAVE. 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 दिस वन। Yeah. ओके, थैंक यू सो मच। तो ये जो है, जो हम लोगों के पास हिंदी में शब्द रहता है बुनना, है ना। जैसे इन एंशियंट टाइम्स वी हैव वुडन मशीन जस्ट लाइक विच इज विच, So bunna, I think the verb is knit, to knit, Knit, knit. And I mean, yeah, I don't know the verb in Hindi for that. To wave. सिलना Sina सिलना। or some, sina, yes, yes. That. ओके ओके ओके, So जस्ट for that, the verb is wave. And other one is to knit. ओके, जस्ट लाइक टू निट, यस यस। बट हाँ देखिए, मैं आपको एक मिनट ना, मैं ये स्टॉप करके दूसरा स्क्रीन दिखाता हूँ, उसमें आपको पता चल वो क्या क्या।
मैं आपको इसका कॉपी करके मीनिंग के साथ दिखाता हूँ। ये हम्म, ये है, देखिए, ये रंगनू हिस्से एक स्कॉलर है, उनकी एक डिक्शनरी है ना, उसमें इसका मतलब यही बताया। एंड सच में आप लोगों ने दोनों ने सही बताया। वीव, वीव इज ऑल्सो, मतलब इसके उसमें यूज कर सकते हैं, है ना। थक, टू निट इज ऑल्सो यूज फॉर, इसके ये थक के वर्ड। अब ये है कि कब से, हाँ, कपड़े के लिए मतलब पहनने के लिए हमने क्या किया है, कपड़ा, अनस्टिच क्लॉथ जो मतलब वो था, है ना, उसको बुना है, उसको तैयार किया है। तैयार किया मीन्स, अब ये जो है तैयार करना, द मैम हु इज सेइंग द प्रोसेस ऑफ, है ना, तो है वही, ये थक उसमें आएगा, तैयार करने के उसमें वो प्रोसेस सब उसमें आएगा, ठीक है। सो कपड़े के लिए, कपड़े के लिए मीन्स पहनने वाले कपड़ों के लिए क्या किया हमने, काम किया है हमने, थक, बुनने का काम किया है ना। तो वो काम किस पे हुआ, क्या किस पे किया, क्या, अनस्टिच क्लॉथ तैयार किया हमने, ठीक है। तो ओवर हियर द रीजन, है ना, रीजन इज गोस, गोस मीन्स क्लॉथ, है ना, वियरेबल क्लॉथ्स। एंड फॉर दैट क्लॉथ, है ना, वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग अ क्या कहते हैं, अनस्टिच्ड क्लॉथ, है ना, वी आर जस्ट लाइक यूज दिस वर्ड। तो हमने उस कपड़े के लिए, पहनने वाले कपड़े के लिए हमने दूसरा कपड़ा, मतलब जो उसका बेसिक कपड़ा होता है वो तैयार किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन, आई थिंक ऐसा होना चाहिए, will the stitched cloth। तो ये रख सकते हैं, जस्ट लाइक उन्होंने यहाँ पे कॉटन बनाया ना इसके लिए, मतलब रस के लिए, बट लाइक, जस्ट लाइक कॉटन मेरे को नहीं लगता कि बहुत ही स्टीक आंसर है, बिकॉज कॉटन इज वन काइंड ऑफ, वो जैसे अभी हम लोग नॉर्मल किसी भी कपड़े को ले लेना, उसके लिए हम लोग रेई कहते हैं, रस कहते हैं, रस का शब्द यूज करते हैं। फिर भी मैं ये डिस्कस करूंगा मेरे स्कॉलर्स के साथ इसके बारे में, है ना। So in that text, it was something about the chiva, which were, I mean, they were using that for the bhikshus, and in that sense, that word was described there. I mean, all those यस, chiva, they जस्ट लाइक, made up with the cotton. ओके, मतलब आई विल डिस्कस, आई विल आस्क सम स्कॉलर्स ना। और ये वर्ड बता रहा था मैं, जैसे गोस, है ना, एंड छोस गोस। तो छोस गोस, गोस मीन्स एवरेज वर्ड विच वी आर यूजिंग इन बिटवीन द फ्रेंड्स, एंड छोस गोस इज रिस्पेक्टेड वर्ड, है ना, जो हम लोग अपने, जस्ट लाइक यू आर सेइंग चीवर, है ना, चीवर इज अ ड्रेस, है ना, विच मॉन्क्स यूज टू वियर। सो फॉर मॉन्क्स वी आर गिविंग रिस्पेक्ट, है ना। सो if we are giving respect to monks, so we have to give respect to their clothes also, है ना। तो चीवर के लिए जो है शब्द हम लोग छोसकोस यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड जस्ट लाइक रस के लिए ना, वी समटाइम ये भी रखना, मतलब ऐसा आता है, जैसे हम जो बात करते हैं, जैसे कॉटन एंड खादी इज डिफरेंट ना। हेलो, इज देयर एनी डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन कॉटन एंड खादी, या फिर सेम है दोनों। Khadi is like a type of cloths or the cotton. I mean, khadi, uh, it is made up of cotton, I think. ओके ओके ओके, एंड नायलॉन। No, so nylon and it is something different. It is synthetic material. यस यस यस, सो जस्ट Nylon, लाइक polyester, फॉर yeah. दिस, इसके लिए ना एक वो रहता है, जैसे
do you know the cloth, Tibetan cloth, which the ladies wearing a cloth just like shining cloths, पूरा मतलब एक रॉब रहता है उनका, उसमें शाइनिंग मटेरियल्स ऐड होते हैं, उसको हम लोग कुछ कहते हैं, गोशन, गोशन कहते हैं, है ना, विच इज अ चाइनीज, मतलब इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, एंड ऑल्सो इन इंडिया वी हैव सम प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल, सिलीगुड़ी, सिक्किम, over there, and in Varanasi also some mills over there where they make that cloth, है ना। तो वो क्लॉथ भी हम लोग, उसको भी हम रेस ही यूज करते हैं। नायलॉन के कपड़े होंगे उनके लिए भी हम रस का शब्द ही यूज करते हैं, मैं जितना मतलब हम लोगों को मैंने देखा, लोगों को बात करते हुए या सुना है। तो ये मेरे को थोड़ा सा, अभी आपने जैसे कॉटन बताया तो डिक्शनरी में भी कॉटन दिखा रहा, सो दिस वन आई विल डिस्कस विद माय स्कॉलर्स, विद माय सुपीरियर्स। ओके, सो वी विल मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, है ना। Oh, sir, जी in जी Hindi we use resha. It's like thread. हाँ, थ्रेड कह सकते हैं, जी 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 जी, थ्रेड के लिए, बट यहाँ पे ये जो कपड़ा, ये जो है, अब जैसे वो थ्रेड के लिए चला जाएगा ना सर, हाँ, रेशा, means रेशा जो हम लोग कहते हैं। चलिए कोई नहीं, yeah, इसी पे नहीं रहेंगे, बट आप लोगों को मेन ये था कि मीनिंग समझना है ना, यहाँ पे yeah, गोश्त yeah. We के, got it. Yeah. जी जी जी, ओके। So we will decode this sentence and after that we will stop, है ना? So please, can anyone read this one? Okay, anyone please. You- Drog, जी 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 जी। dag, ru, Dog, log, मैम? drog, हम्म, dag, नहीं, no, this one is ga, prescript ना, गा, हाँ, ga, जी ru, जी, rog, ram, ye. no. If we have the before the word, we have to make this ya. But over here we have the after, na. So this one will pronounce as ja. Uh, Jed, ze, Jed, Jed, jed. Jed, Jed. So, है ना? So dog means this word नहीं आया ना, ये वाला पहले नहीं आया ये word. So okay, dog. The meaning of dog is friend, है ना? तो घा मीन्स खुश करने के लिए, है ना, फ्रेंड को खुश करने के लिए, खुश के लिए क्या होगा, मेक हैप्पी। ओके, ये दोनों शब्द अभी तक आए नहीं थे, है ना, इसीलिए मतलब अभी यहाँ पे मैं मीनिंग लिख रहा हूँ। अभी गा के लिए एक और मीनिंग रहता है, जैसे यहाँ पे जो है मेक हैप्पी भी हो सकता है, लव होगा एक, ठीक है। जैसे आ, हम कहते हैं ना कि सभी प्राणियों से प्रेम करें, है ना। तो उसके लिए तिब्बतन में एक वर्ड रहता है, सिमचेन थमचे गावर्ग्युर, है ना। तो सभी प्राणी जो हैं प्रेम के वो बने, गावर्ग्युर मतलब प्रेम के इंडिविजुअली, मतलब एक प्रेम के लायक बने, मतलब प्रेम के लिए सभी प्राणी प्रेम के सिंबल बने, मतलब उसमें यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो वहां पे भी गा शब्द होता है, तो गा शब्द प्रेम के लिए भी यूज होता है। ओके, और हैप्पीनेस के लिए भी मेक, यहाँ पे मैंने मेक हैप्पी क्यों बनाया था, क्योंकि वी हैव रू फॉर, है ना, फोर्थ केस। ओके, और रोग्रम, रोग्रम मीन्स द मीनिंग ऑफ रोग्रम इज हेल्प, है ना, और जे का मीनिंग होता है डू, ठीक है।
तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे ये है कि जैसे मित्र को खुश करने के लिए सहायता करें। To help a friend make happy. डू हेल्प फॉर सॉरी डू हेल्प फ्रेंड, है ना, फॉर मेक हैप्पी, है ना। तो यहाँ पे मेक हिम हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड है, ठीक है, तो हिम और हर ऐड कर सकते हैं ना। डू हेल्प फ्रेंड फॉर मेक हर हैप्पी या फॉर मेक हिम हैप्पी, है ना। तो यहाँ पे फोर जो है वो इंस्टेड ऑफ उसमें आया था फोर्थ केस, मतलब इंडिकेशन ऑफ फोर्थ केस, है ना। एंड दोस्त को खुश करने के लिए या मित्र को खुश करने के लिए सहायता करें। किसकी सहायता करें? उसकी सहायता करें, ठीक है। तो डू हेल्प फ्रेंड फॉर मेक हिम हैप्पी। इसका अलग एक और कर सकते हैं, हेल्प योर फ्रेंड फॉर मेक हिम हैप्पी, है ना। तो ये सेंटेंस मतलब अनुवाद में हम लोग अपने सहूलियत के, Help your friend for being happy. सॉरी, Help your friend for being happy. हाँ वो भी कर सकते हैं, मतलब जैसी आपकी आपको वो लगता है, सहूलियत लगता है। जैसे इन्होंने बताया हेल्प योर फ्रेंड फॉर बीइंग हैप्पी, तो किसी भी अर्थ में हम ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे है डू हेल्प फ्रेंड, है ना, फॉर मेक हिम हैप्पी, ये था वर्ड मतलब शब्द अनुवाद, है ना। तो इसको हम लोग हेल्प योर फ्रेंड फॉर बीइंग हैप्पी मीन्स यहाँ पे दोनों की हैप्पीनेस की बात की गई है कि अपने दोस्त की सहायता करो खुश रहने के लिए, ठीक है। यहाँ पे था खुश रहने के लिए, है ना, अपने फ्रेंड की सहायता करो। तो यहाँ पे हमने हेल्प फ्रेंड, दोस्त मित्र की सहायता करो उसको खुश रखने के लिए, इस अर्थ में भी ट्रांसलेशन हुआ। वो शब्द अनुवाद, इसीलिए कहते हैं ना भावा अनुवाद और शब्द अनुवाद दो प्रकार के रहते हैं। शब्द अनुवाद में कभी कभी ऐसा रहता है कि जब हम शब्द टू शब्द करते हैं, वर्ड टू वर्ड, when we used to translate by word to word, है ना, that times in some places we can't express our feeling, जो वहाँ पे जो उस भाषा में, in other language which that scholar what that scholar want to express, है ना, we can't translation that expression with word to word translation, है ना। For that we need भावानुवाद, ट्रांसलेशन ऑफ हिज फीलिंग, है ना। तो ऐसे अनुवाद भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ओके, वी विल स्टॉप हियर, है ना। तो आज की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज दूंगा। यस्टरडे आई थिंक सम टेक्निकल फॉल्ट इन माय लैपटॉप, है ना, ड्यू टू दैट प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग संभव नहीं हो पाया। तो यस्टरडेज रिकॉर्डिंग इज नॉट अवेलेबल, बट टुडे वी रिकॉर्डेड टाइमली एंड वी रिकॉर्डेड। अगर ये रिकॉर्ड हो चुका है तो मैं आपको ये सेंड करता हूँ, है ना। आई विल सेंड टुडेज रिकॉर्डिंग एज सुन एज पॉसिबल। ओके, so we will stop here and meet tomorrow. Just do practice and make sentences, है ना। How much sentences you are able to make, please try to make them. Okay, good Okay. night. Thank you, sir. जी, Thank you, sir. Thank you. okay, bye.